Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to start with lesson 4, Exploring Magnets, from our new Science NCERT book, Curiosity. So let's get started. Today we will do reading and explanation of this lesson. So the lesson name is Exploring Magnets. So what does the word explore means? Exploring means to discover or to find out, and the term magnet means a piece of iron that attract the metal objects. So we are going to learn about magnets in this lesson. Hello students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. As you are aware, we have started lesson 4, Exploring Magnets, from our new Science NCERT book, Curiosity, and we have already covered more than half part of this chapter in part 1. Now today we will understand further of this chapter and will also do the summary and the back exercises. In the previous part 1, I have already explained about magnetic compass, its importance and its use. Then different types of magnets, magnetic and non-magnetic materials, two poles of magnet, attraction and repulsion of magnets. So let us start with the chapter. Here is an activity 4.6. Let us experiment. Now here we have to do one experiment. Take a magnetic compass and a bar magnet. So I hope you have seen a bar magnet. Bar magnet ऐसा होता है, which is having the poles, two poles north and south. तो आपने क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और बार मैग्नेट लेना है. Place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come to rest. So आपने क्या करना है, मैग्नेटिक कंपास जो है उसको प्लेस करके रख कर उसको ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपको मैग्नेटिक कंपास को रखना है और वेट करना है कि वो जो नीडल है वो रेस्ट पर आ जाए, मतलब वो एक पोजीशन पे आ जाए. Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9a. अब आपने क्या करना है, नॉर्थ साइड बार मैग्नेट की और मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जो है उसको पास में लेकर आना है. Bring close, you have to bring close north pole of bar magnet to the north pole of compass needle. इन दोनों को आपको पास में लेकर आना है. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? अब आपने ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है. ठीक है. Now repeat the above step with south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this time? तो एक बार आपने नॉर्थ पोल के साथ करना है, नॉर्थ पोल को लेकर आना है नीडल के पास, कंपास के पास, और सेकंड टाइम में आपने साउथ पोल को लेकर आना है. ठीक है. द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट. ये जो नीडल है ये भी एक मैग्नेट है. विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट? क्या ये सेम बिहेवियर शो करेगा? जब आप नॉर्थ साइड लेके जाओगे बार मैग्नेट की तो किस तरह से ये बिहेव करेगा, क्या होगा, इसका क्या ऑब्जर्वेशन होगी इसकी. और जब आप इसी का साउथ पोल लेके जाओगे कंपास नीडल के पास तो तब क्या ऑब्जर्वेशन होगी. So there is a difference in the observation. Now what is that difference? When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a. तो जब आप नॉर्थ पोल लेके जाओगे मैग्नेट का नीडल, कंपास की नीडल के पास, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल, उस टाइम पर क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, इट विल मूव अवे. एंड व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर, और जब साउथ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास नीडल के पास लाया जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, दे विल मूव क्लोजर, वो एक दूसरे के पास आएंगे. ठीक है.
So this already we have learned that what is the attraction and repulsion property of magnets. Suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet. Will this affect deflection of compass needle? अब हमें क्या करना है, अब हमें मैग्नेट जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट और कंपस नीडल, उनके बीच में वुड एक वुड के पीस को हमें प्लेस करना है. Activity 4.7, let us investigate. Repeat the first or second part of activity 4.6 without disturbing the bar magnet and magnetic compass. Place a piece of wood between them. अब आपने क्या करना है, आपने ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. आपने पहले लेना है मैग्नेटिक, यहाँ पर एक आपने कंपस लेना है और यहाँ आपने बार मैग्नेट लेना है. बीच में आपने क्या लगाना है, वुड का एक पीस. ऑब्जर्व द कंपस नीडल केयरफुली. अब क्या होगा इसमें, कंपस की नीडल को आपको केयरफुली देखना है. इज देयर एनी इफेक्ट ऑन डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. तो ये वुड के आने से क्या कोई डिफरेंस आएगा? ये साउथ पोल है और यहाँ पे नीडल जो है वो नॉर्थ में है. तो देयर वुड बी नो डिफरेंस सीन हेयर बिकॉज द वुड इज केप्ट ओवर हेयर. इनके बीच में रखी है बट कोई डिफरेंस नहीं आएगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट एट ऑल. Repeat the process by replacing the piece of wood by cardboard sheet, thin plastic sheet and thin glass sheet. अब इसके बाद आप कार्डबोर्ड शीट रख दो बीच में, थिन प्लास्टिक शीट रख दो या आप थिन ग्लास शीट रख दो. रिपीट करनी है आपने, सेम प्रोसेस को आपने रिपीट करना है. वुड के बाद आपने इन चीज़ों से रिप्लेस करके इसको एक्टिविटी में लिखना है. ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो आपने क्या किया, मटेरियल प्लेस बिटवीन मैग्नेट एंड कंपस नीडल. तो आपने जब इनको आपने बीच में रखा, वुड को रखा, कार्डबोर्ड को, प्लास्टिक को, ग्लास को, इससे क्या होगा, you would observe that there is no appreciable change in the deflection of needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. तो आप देखोगे कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब मैग्नेट और कंपस नीडल में कोई चेंज नहीं आ रहा. बीच में कुछ भी रख लो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे हैं. दे आर गेटिंग क्लोजर. सो वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ये जो मटेरियल है, वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, ये नॉन मैग्नेटिक है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट इनको बीच में रखने के बाद भी सेम टू सेम है. तो अगर आपने वुड बीच में रखी तो क्या होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मैग्नेट. कार्डबोर्ड, नो इफेक्ट ऑन दी मैग्नेट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस मैग्नेट पे. वो मैग्नेट जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा ही, नीडल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही. प्लास्टिक, नो इफेक्ट ऑन दी मैग्नेट. इफेक्ट नहीं आएगा मीन्स कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, इनका बीच में रखने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ग्लास, नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट. Fun with magnets. After learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? तो अब इतना सब पढ़ने के बाद रेशमा जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी और उसने कुछ फन एक्टिविटीज भी प्लान करी अपने स्कूल फेयर में यूजिंग मैग्नेट. ओके, सो कैन वी मेक अ गार्लैंड. अगर हमने एक बार मैग्नेट लगाया और यहाँ पर हमने पिन्स लगा दिए, बोट पिन्स हैं ये, तो ये एक तरह का गार्लैंड बन जाएगा. मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम. इज दैट नॉट अमेजिंग? मतलब इनको विदाउट टच करे हमने क्या किया, मूव कर लिया. नीचे से ये ऊपर आ गए, आके उसको स्टक हो गए, चिपक गए थे. तो हमने इनको टच भी नहीं किया और ये जो है ये मूव कर लिए, नीचे से ऊपर चले गए. कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे. क्या ये जो यहाँ पर ये जो आपको मेज दिया हुआ है, एक पजल टाइप है, ये मेज दिया हुआ है आपको, क्या इसमें से आप स्टील बॉल्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट? कैन वी पिक आउट अ स्टील
paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet wet? क्या अंदर जो पेपर क्लिप गिरा हुआ है ग्लास के अंदर, स्टील के ग्लास के अंदर, क्या आप ये जो गिलास है इसके अंदर एक स्टील पेपर क्लिप गिरा हुआ है, क्या हम इसे मैग्नेट यूज करके बाहर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग आवर फिंगर्स और मेकिंग आवर फिंगर्स एंड मैग्नेट्स वेट? Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा टू मैच बॉक्सेस मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स, दे आर फेसिंग टुगेदर, दे आर फेसिंग टुगेदर विद द लाइक पोल। ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, तो व्हेन टू कार्स, अगर दो कार्स ऐसी बनाई जाएंगी जो बिल्कुल, ये भी नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि ये लाइक पोल्स है। ठीक है, इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज N and S, ये आपने अभी देखा था बार मैग्नेट मैंने दिखाया था, उसमें भी मार्क करे हुए थे पोल्स N और S। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ व्हाइट डॉट, ये व्हाइट डॉट लगी हुई है यहाँ पर इन दिस पिक्चर, ये जो कार वाली जो पिक्चर बनी हुई है इसमें व्हाइट डॉट लगी है, इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल है। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कई मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल को रेड भी पेंट किया जाता है और साउथ पोल को ब्लू भी पेंट किया जाता है। ठीक है, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेट्स को सेफ कैसे रख सकते हैं। अब मैग्नेट का यूज आपको पता लग गया, क्या इंपॉर्टेंस है ये पता लग गई, अब आप ये देखो कि मैग्नेट्स को सेफ कैसे रखेंगे। मैग्नेट्स से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स with unlike poles on the same side, keep a piece of wood in between, place two pieces of soft iron across the ends। तो मैग्नेट्स क्या बोलते हैं कि हमें प्रॉपरली स्टोर करो, कैसे, पेयर में रखकर, अनलाइक पोल्स जो है वो होने चाहिए, जैसे ये एक मैग्नेट है, टू मैग्नेट्स यहाँ पे दिए हैं हमें, बार मैग्नेट दिए हुए हैं, बीच में एक वुडन पीस डाला हुआ है, और ये अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और साइड में यहाँ पर आयरन का पीस डालना चाहिए। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, इसको गर्म नहीं करना चाहिए, इनको गिराना नहीं चाहिए और इनके ऊपर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए, हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, तो इनको मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल के पास भी नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन, have fun but treat magnets with care, so this question is also here important ki how to keep the magnets safe, okay, by not heating them, not dropping them, not hammering them, do not use them near the mobile phones, do not keep them near the mobile phone remote control, then place a piece of wood in between them, keep them in pairs, you have to learn all these. So with this we have come to the end of our lesson. Now we'll quickly do the summary. A magnet has two poles, the north pole and the south pole. तो magnet के जो है वो two poles होते हैं, north pole and the south pole. The poles of a magnet always exist in pairs. Magnet के जो two poles होते हैं वो pair में ही होते हैं. A single north pole और a single south pole cannot exist. सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैग्नेट में या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। मैग्नेटिक मटीरियल्स आर द मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मटीरियल जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जो बने होते हैं आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से, ये जो है ये मैग्नेटिक मटीरियल है जो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Non-magnetic material are the materials that are not attracted towards a magnet. So non-magnetic material कौन से हुए, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। So these materials are called non-magnetic because they are not attracted towards a magnet. A freely suspended magnet rests along the north-south direction. एक freely suspended magnet, अगर एक मैग्नेट को फ्री छोड़ दो तो जब वो अपनी पोजीशन पे आएगा तो वो रेस्ट करेगा किस पोजीशन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इंडिकेट करती है, नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. When two magnets are brought close to each other like poles north north south south, अगर नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ को साउथ से मिला दे तो वो रिपेल करेंगे. while unlike poles north south they attract each other. Okay, so this was the summary of this lesson. Let's come to the question answers. Let us enhance our learning. Fill in the blanks. The very first fill up is unlike poles of two magnets dash each other whereas like pole dash each other. तो ये हमने अभी समरी में भी पढ़ा है और लेसन में भी पढ़ा था. अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. और लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. The materials that are attracted towards a magnet are called, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. The needle of magnetic compass rests along the dash direction. कौन सी डायरेक्शन में एक कंपास की जो नीडल है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ साउथ. A magnet always has dash poles. कितने पोल्स होते हैं? 2 poles, north and south. State whether the following statements are true or false. इसमें क्या करना है? हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है. A magnet can be broken into pieces to obtain a single pole. अगर हम किसी मैग्नेट को 2 पीसेस में तोड़ दें, क्या हम उसमें से कोई सिंगल पोल निकाल सकते हैं? कोई एक मैग्नेट ऐसा बन सकता है जो सिंगल पोल का हो? फॉल्स. All magnets have 2 poles. Whether even if we are breaking it into pieces, जब भी हम उसे ब्रेक करेंगे तब भी उसके 2 poles ही होंगे. Similar poles of a magnet repel each other. Similar means north north, south south. एक दूसरे को रिपेल करेंगे. True. Iron fillings mostly stick in the middle of the bar magnet when it is brought near them. आयरन फिलिंग्स एक बार मैग्नेट के क्या मिडल में सबसे ज्यादा चिपकेगी जब वो आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के पास लाएंगे? नो, फॉल्स. वो पोल्स पे ज्यादा चिपकेगी. अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर हम लेते हैं और वो अगर रेस्ट करता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में करता है? नॉर्थ साउथ में. यस, ट्रू. So this way you have to complete this. Next question. Column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting interaction between them for different situations. Fill in the blanks. अब column 1 और column 2 दिया है. column 1 में हमें क्या दिया हुआ है? different position दी हुई है मैग्नेट की. नॉर्थ और नॉर्थ जब एक दूसरे के पास होंगे तो क्या होगा? हमें लिखना है कॉलम 2 में. ऑलवेज जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन होगी. अट्रैक्शन कब होगी? जब नॉर्थ के साथ कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल. देन साउथ एंड नॉर्थ पोल जब साथ में होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन. रिपल्शन कब होगी? अगर साउथ और साउथ पोल साथ में आ जाए. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. So this way you have to complete this question. Next question. Others performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel clips. एक बार मैग्नेट लिया और अधर्व ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया. ये जो क्लिप्स, स्टील यू क्लिप्स हैं, उसने जो है वो बार मैग्नेट के पास जाकर रोल कर दिए, चिपका दिए. According to you, which of the options given in table 4.3 is likely to be his observation? Number of pin attracted by magnet at its various position. A और C पोल्स हैं और B जो है वो मिडल पार्ट है. हमें देखना है पोजीशन A, B और C कहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट होंगे. तो इसमें जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है 10, 10 और 2. ठीक है, सबसे ज्यादा पोल्स पर ही होंगे तो 10 A पर और 10 C पर और बीच में 2. So I think so this is the correct option. This is the correct option because second में हमें दिया है पोजीशन A पे 10 और पोजीशन B पे 10, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, फिर हमें पोजीशन A दी हुई है, पोजीशन A थर्ड में दी है 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर पोल पर सिर्फ 2 ही मैग्नेट, 2 ही क्लिप्स जो है वो यहाँ पे स्टक हो. ये भी पॉसिबल नहीं है. देन लास्ट वाला जो दिया हुआ है उसमें बीच में पोजीशन बी में भी हमें 10 दिया हुआ है, वो भी पॉसिबल नहीं है. सो द पॉसिबल आंसर
The possible answer is option number 1. ऑप्शन नंबर 1, पोजीशन ए में 10, पोजीशन सी में 10 और बी में 2. Reshma bought 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 amongst the 3 could be magnets without using any material? अब क्या है, रेशमा ने क्या खरीदा, 3 मेटल बार खरीदे हैं मार्केट से, 2 तो इसमें से मैग्नेट है और 1 इसमें से आयरन का पीस है. अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से मैग्नेट है और कौन सा जो है, कौन से 2 जो है वो मैग्नेट है, विदाउट यूजिंग एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल यूज करे बिना. रेशमा कैन ब्रिंग ईच मेटल बार क्लोज टू दी अदर 2 बार्स वन बाय वन. वो क्या करेगी, एक बार को दूसरे दोनों बार्स के पास लाएगी. द 2 मैग्नेट्स, जब दो मैग्नेट्स होंगे, दे विल अट्रैक्ट द आयरन बार बट रिपेल ईच अदर. एक दूसरे को तो वो रिपेल करेंगे, बट आयरन बार के साथ वो इजीली चिपक जाएंगे. ठीक है, मैग्नेट जो है जब एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे, जब डिपेंडिंग ऑन देयर पोल, द पीस ऑफ आयरन विल अट्रैक्ट एंड रेस्ट टू आर मैग्नेट. आयरन का जो पीस है वो तो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, तो वो इजीली पता लग जाएगा. और जब वो नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल लेकर आएगी तो वो रिपेल करेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये दोनों मैग्नेट्स हैं. ठीक है, यू आर गिवन a magnet which does not have the poles marked. How can you find its pole with the help of another magnet which has its pole marked? आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें पोल्स मार्क नहीं करे हुए, और आपने क्या करना है, आपके पास एक दूसरा मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट की हेल्प से आपने जिसके पोल मार्क है उस मैग्नेट के पोल्स को मार्क करना है. तो कैसे करोगे आप, ब्रिंगिंग नॉर्थ पोल ऑफ मार्क्ड मैग्नेट टू एनी पोल ऑफ अनमार्क्ड. मतलब हम एक जिस मैग्नेट के पोल, जिस मैग्नेट का पोल जो मार्क करा हुआ है उसके नॉर्थ पोल को दूसरे अनमार्क्ड मैग्नेट के साथ लेकर आएंगे. अगर वो रिपेल करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो नॉर्थ है, और अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो पता लग जाएगा कि वो साउथ. क्वेश्चन नंबर 7, a bar magnet has no markings to indicate its pole. How would you find out near which end its north pole is located without using another magnet? एक बार मैग्नेट है जिसपे कोई मार्किंग नहीं है पोल्स की, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है विदाउट यूजिंग अनदर, दूसरे मैग्नेट को यूज करे बिना. A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. जब एक freely suspended magnet होता है, अगर उसमें मार्किंग नहीं भी है, तो वो जब रेस्ट पे आता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है. The end of magnet that point towards north direction is north pole of it. तो जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ की तरफ करेगा वो साउथ होगा. हमें नॉर्थ पोल ढूंढना है, तो नॉर्थ पोल हमें पता लग जाएगा, हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखेंगे, जब वो रेस्ट पे आएगा तो वो नॉर्थ साइड में आ जाएगा. तो नॉर्थ डायरेक्शन इन जो है वो हमें पता लग जाएगा, इट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज द नॉर्थ पोल ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 8, इफ द अर्थ इज itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of magnetic compass? अगर अर्थ ही मैग्नेट हो, कैन यू गेस, क्या आप अर्थ के पोल्स को गेस कर सकते हो बाय लुकिंग एट द मैग्नेटिक कंपस? यस, बाय लुकिंग एट द नीडल ऑफ द कंपस. अगर आप मैग्नेटिक कंपस की नीडल को देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है. यू कैन इजीली guess the poles of the earth's magnet. Question number 9, while a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screws kept falling down. Suggest a way to solve the problem of mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. एक मैकेनिक है जो एक गैजेट को रिपेयर कर रहा है यूजिंग स्क्रू ड्राइवर. ठीक है, पेचकस लेकर. द स्टील स्क्रू, और जो वो स्क्रू निकाल रहा है वो गिरते जा रहे हैं. तो इस प्रॉब्लम को, जो स्क्रू गिरते जा रहे हैं, क्या कोई तरीका है, किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज हिज स्क्रू ड्राइवर. अगर वो अपने स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर ले तो वो स्क्रूज जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे. क्वेश्चन नंबर 10,
two ring magnets X and Y are arranged as shown in figure 4.16. यहाँ पर आपको two ring magnets दिख रहे हैं X और Y. It is observed that the magnet X does not move down further. What could be the possible reasons? Suggest a way to bring the magnet X in the contact with magnet Y without pushing either of the magnet. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टू रिंग मैग्नेट्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्व किया गया कि एक्स जो मैग्नेट है वो नीचे नहीं जा रहा, नीचे पुश नहीं कर पा रहे उसको. इसका क्या रीजन हो सकता है? और एक आपको वे बताना है कि अगर हम मैग्नेट एक्स को वाई के कांटेक्ट में लाना चाहें बिना उसे पुश करे, हम वो कैसे कर सकते हैं? हमें हैंड की हेल्प नहीं लेनी पुश करने के लिए, विदाउट पुशिंग इट. सो व्हाट कैन वी डू? ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्शन एक्स डज नॉट मूव डाउन. आप देखो यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर ये भी नॉर्थ पोल होगा, ये भी नॉर्थ पोल होगा, इसी वजह से ये जो है ये रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. अगर हमें x को y के साथ कांटेक्ट में लाना है तो हम क्या करेंगे? हम इनको फ्लिप कर देंगे, मैग्नेट को फ्लिप कर देंगे. x को हम अगर हम x को फ्लिप कर देते हैं तो नीचे साउथ पोल आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. एक मैग्नेट को हम फ्लिप कर देंगे, ठीक है, और हम पुश भी नहीं करेंगे और वो अट्रैक्ट करके नीचे अपने आप आ जाएगा. सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. 3 magnets are arranged on a table in the form of the shape shown in figure 4.17. What is the polarity north or south at the ends 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnets? Polarity of one end is given for 5 is given for. यहाँ पे 3 मैग्नेट्स हैं, 3 देखो बार मैग्नेट्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें इनका क्या निकालना है? हमें ये बताना है कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल. ठीक है, एक हमें दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल दिया है 5 पे. ठीक है, अब ये इजी है. कैसे? देखो यहाँ नॉर्थ पोल है, इट मीन्स कि जो 7 वाला जो मैग्नेट लगा हुआ है ये साउथ 6 नंबर पे साउथ पोल होगा. ठीक है, 4 नंबर पे साउथ पोल होगा. क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ ये जो मैग्नेट है ये आपस में चिपके हुए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली अनलाइक पोल्स हैं. ठीक है, ऑपोजिट पोल्स हैं, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये साउथ होगा. जब ये साउथ होगा तो इसका ये वाला जो 3 नंबर होगा ये नॉर्थ होगा. ठीक है, अब ये वाला जो मैग्नेट है 1 और 2 वाला ये भी आपस में ये भी चिपके हुए हैं, तो इट मीन्स अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑपोजिट पोल्स हैं. अगर नंबर 2 साउथ होगा तो नंबर 1 क्या होगा? नॉर्थ. तो इस तरीके से हम जो है सबकी जो है यहाँ पर पोल्स हम इजीली मैग्नेट्स के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, 3 बार मैग्नेट्स हैं, 3 बार मैग्नेट्स की हमें यहाँ पर पोल जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. So with this we have finished lesson 4, exploring magnets. I hope you have understood it. And one more thing, I am feeling very glad to read your valuable comments in the comment box. So now I will meet you soon with the important points of this lesson. Thank you for liking my videos and please do share it further. And if you have not subscribed my channel, please do it so. Thank you.